اردو ہے میرا نام، اردو ہے میرا نام، مصروں کی پہلی میں میر کی ہمراز غالب کی سہیلی، اردو ہے میرا نام۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ چینل اردو لٹریچر۔ آپ سبھی کا آپ کے اپنے پسندیدہ چینل اردو لٹریچر پر خیر مقدم ہے۔ پیش خدمت ہے افسانہ مفت کرم داشتان۔ ان دنوں حسن اتفاق سے حاکم ضلع ایک صاحب ذوق بزرگ تھے، جنہوں نے تاریخ قدیم سکہ جات میں اچھی تفتیش کی ہے۔ خدا جانے کیسے دفتری کاموں سے انہیں ان مشاغل کے لیے فرصت مل جاتی ہے۔ میں نے ان کے کارنامے پڑھے تھے اور ان کا غائبانہ مدعا تھا، لیکن ان کی افسری مزید تعلقات میں مانا تھی۔ مجھے یہ تکلف تھا کہ اگر میری جانب سے پیش قدمی ہوئی تو عام تجربے کے مطابق وہ میری حکام جوئی پر محمول کی جائے گی، اور میں کسی حالت میں بھی یہ الزام اپنے سر نہیں لینا چاہتا تھا۔ میں تو حکام کو دعوتوں اور عام تقریروں میں بھی مدعو کرنے کا مخالف ہوں، اور جب بھی سنتا ہوں کسی افسر کو کسی رفع عام کے جلسے کا صدر بنایا گیا، یا کوئی اسکول یا شفا خانہ یا بدوا آشرم کسی گورنر کے نام سے منسوب ہوا، تو برادران وطن کی غلامانہ ذہنیت پر گھنٹوں افسوس کرتا ہوں۔ مگر جب ایک دن حاکم ضلع نے خود میرے نام ایک رقعہ بھیجا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، کیا آپ میرے بنگلے پر تشریف لانے کی تکلیف گوارا فرمائیں گے، تو میں بڑے شش و پنج میں پڑ گیا۔ کیا جواب دوں؟ اپنے ایک دوستوں سے مشورہ لیا۔ انہوں نے کہا، صاف کہہ دیجئے مجھے فرصت نہیں۔ وہ حاکم ضلع ہوں گے تو اپنے گھر کے ہوں گے، کوئی سرکاری یا ضابطے کا کام ہوتا تو آپ کا جانا مناسب تھا، لیکن ذاتی ملاقات کے لیے آپ کا جانا آپ کی شان کے خلاف ہے۔ اگر وہ خود آپ کے مکان پر کیوں نہیں آئے، اس سے کیا ان کی شان میں بٹا لگا جاتا؟ اس لیے تو خود نہیں آئے اور آپ کو بلایا کہ وہ حاکم ضلع ہے۔ ان احمق ہندوستانیوں کو بھی یہ سمجھ نہ آئے گی کہ دفتر کے باہر وہ بھی ویسے انسان ہیں جیسے ہم یا آپ۔ شاید یہ لوگ اپنی بیوی سے بھی افسری جتاتے ہوں گے، انہیں اپنا عہدہ بھی نہیں بھولتا۔ ایک صاحب نے جو لطیفوں کی خزانچی ہیں، ہندوستانی افسروں کے کئی پرمذاق تذکرے سنائے۔ ایک افسر صاحب سسرال گئے، شاید بیوی کو رخصت کرانا تھا جیسا عام رواج ہے۔ خسر صاحب نے اس موقع پر رخصت کرنے سے انکار کیا۔ کہا، بیٹا ابھی اتنے دنوں کے بعد آئی ہے، 3 مہینے بھی نہیں ہوئے، بھلا اور نہیں تو 6 مہینے تو رہنے دو۔ ادھر بیوی نے بھی 9 کے ذریعے پیغام کہلا بھیجا، ابھی میں جانا نہیں چاہتی، آخر ماں باپ سے مجھے بھی تو محبت ہے، کچھ تمہارے ہاتھ بک تھوڑی ہی گئی ہوں۔ میاں داماد ڈپٹی کلکٹر تھے، جامع سے باہر ہو گئے۔ خسر پر سمن جاری کر دیا۔ بیچارہ بڈھا آدمی دوسرے دن صاحبزادی کو لے کر داماد کی خدمت میں حاضر ہوا، تب جا کے اس کی جان بچی۔ یہ لوگ ایسے خر دماغ ہوتے ہیں، اور پھر تمہیں حاکم ضلع سے لینا کیا ہے؟ اگر تم کوئی باغیانہ یا اشتعال انگیز قصہ یا مضمون لکھو گے تو فوراً گرفتار ہو جاؤ گے، مطلق رعایت نہ کی جائے گی۔ اپنے لڑکے کے لیے قانون گوئی نائب تحصیلداری کی فکر تمہیں ہے نہیں، پھر خواہ کیوں دوڑے جاؤ؟ لیکن میں نے دوستوں کی صلاح پر کار پیرا ہونا تہذیب کے خلاف سمجھا۔ ایک شریف آدمی قدر افزائی کرتا ہے تو اس سے محض اس بنا پر بے اعتنائی کرنا کہ وہ حاکم ضلع ہے تنگ ظرفی ہے۔ بے شک حاکم ضلع صاحب میرے غریب خانے پہ آتے تو ان کی شان کم نہ ہوتی۔ واضح دار آدمی بے تکلف چلاتا۔ لیکن بھائی، ضلع کی افسری بڑی چیز ہے، اب قصہ نگار کی ہستی ہی کیا ہے؟ انگلینڈ یا امریکہ میں افسانہ نگاروں کی میز پر مدعو ہونے میں وزیر اعظم بھی اپنا اعزاز سمجھتے ہوں گے، لیکن یہ ہندوستان ہے جہاں ہر ایک رئیس کے دربار میں شاعروں کا ایک انبوہ قصیدہ خوانی کے لیے جمع رہتا تھا، اور اب بھی تاج پوشی کے موقع پر ہمارے اہل قلم بن بلائے رئیسوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، قصیدہ پیش کرتے ہیں، انعام پاتے ہیں۔ تو تم ایسے کہاں کے ہو کہ حاکم ضلع تمہارے گھر پر چلا ہے؟ وہ افسر ہے تو تم مضمون نگار ہو۔ جب تم اس قدر لڑکپن اتنگ مزاجی ہے تو پھر وہ تو ضلع کا بادشاہ ہے، اگر اسے غرور بھی ہو تو جائز ہے، کمزوری کہو، جہالت کہو، خر دماغی کہو، لیکن پھر بھی جائز ہے۔ اور خدا کا شکر کرو کہ افسر صاحب تمہارے گھر نہیں آئے،
ورنہ उनकी खातिर मदारत का सामान तुम्हारे यहाँ कहाँ था? गद की एक कुर्सी भी तो नहीं है। 3 पैसे की 24 बीड़ियाँ पीकर दिल खुश कर लेते हो। है तौफीक रुपए की 2 सिगार पीने की? कहाँ वो सिगार मिलता है? उसका क्या नाम है? उसकी खबर है तुम्हें? अपनी तकदीर को सराहो कि वो खुद नहीं आए, तुम्हें बुला लिया। 4-5 रुपए बिगड़ ही जाते और शर्मिंदगी भी होती। खुदा ना खास्ता और तुम्हारी शामत अमाल से कहीं उनकी अहलिया भी हमरा होती तो क़यामत ही आ जाती। उनकी मेहमान नवाजी तुम या तुम्हारी धर्मपत्नी जी कर सकती थी। वो तुम्हारे घर में यकीनन जाती और तुम्हारे लिए मौत का सामान होता। तुम अपने घर में फटे पुराने कपड़े पहनकर अपनी बेनवाई में मगन रहकर जिंदगी बसर कर सकते हो, लेकिन कोई भी खुददार शख्स ये गवारा नहीं कर सकता कि उसकी खस्ता हाली दूसरों के लिए माया तफरी हो। उन लेडी साहिबा के सामने तुम्हारी तो जबान बंद हो जाती और यही जी चाहता कि ज़मीन फट जाती और तुम उसमें समा जाती। चुनांचे मैंने हाकिम ज़िला की दावत कबूल की और बावजूद ये कि इसमें किस कदर नागवार रऊनत थी, लेकिन शफ़क़त और खुलूस ने उसे ज़ाहिर न होने दिया। कम से कम उन्होंने मुझे शिकायत का मौका न दिया। अफसराना फितरत को तब्दील करना उनके इम्कान से बाहर था। मैंने सोचा यह ज़ाती मामला है। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं चला गया, कुछ अदबी गपशप की और वापस आया। किसी से उसका जिक्र करने की ज़रूरत ही क्या थी। मैंने इस वाक़े को ज़रा अहमियत ना दी। गोया बाज़ार सब्ज़ी खरीदने गया था। मुखबिरों ने न जाने कैसे उसकी खबर लगाई। ख़ास हलकों में चर्चे होने लगे कि अफसर ज़िला से मेरे बहुत दोस्ताना ताल्लुकात हैं और वो मेरी बड़ी इज्जत करते हैं। मुबालगे ने मेरी वक़्त में और भी इजाफ़ा कर दिया। यहाँ तक कि मशहूर हुआ कि वो मुझसे सलाह लिए बगैर कोई तजवीज़ या रिपोर्ट नहीं लिखते। कोई ज़ी होश आदमी इस किस्म की शोहरत से फ़ायदा उठा सकता था। अहले गर्ज बावले होते हैं, तिनके का सहारा ढूंढते फिरते हैं। उन्हें इसका यकीन दिलाना कुछ भी मुश्किल नहीं था कि मेरे ज़रिए उनके मतलब बरारी हो सकती है, लेकिन मैं ऐसी हरकतों को जलील समझता हूँ। सदा साहब अपनी अपनी दास्तानें लेकर मेरे पास आए। किसी के साथ पुलिस ने बेजा ज़्यादती की थी, कोई इनकम टैक्स वालों की सख्ती से नाला था, किसी को ये शिकायत थी कि दफ्तर में इसकी हक तलफी हो रही है और उसके बाद के आदमियों को तरक्कियाँ मिल रही हैं। उसका नंबर जब आता है कोई लिहाज नहीं किया जाता। लिहाजा इस किस्म की कोई दास्तान रोज़ ही मुझ तक पहुँचेगी, लेकिन मेरे पास उन सब के लिए एक ही जवाब था, मुझसे कोई मतलब नहीं। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा था कि मेरे बचपन की एक हमजमा दोस्त वालिद हुए। हम दोनों एक ही मकतब में पढ़ने जाया करते थे। कोई 45 साल की पुरानी बात है। मेरी उम्र 8-9 साल से ज़्यादा न थी। वो भी करीब करीब इस उम्र के, मगर मुझसे कहीं तवाना फरबा थे। मैं ज़हीन था, वो हद दर्जा की गबी। मौलवी साहब उनसे आजिज़ थे और उन्हें सबक पढ़ाने की जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी थी। मैं उसे अपने लिए बायस फ़ख्र समझता था और मौलवी साहब की कमची जहाँ लाचार थी वहाँ मेरी हमदर्दी कामयाब हो गई। बलदेव चल निकला और खालिक बारी तक आ पहुँचा, मगर इसी दरमियान में मौलवी साहब की वफ़ात ने इस मकतब को ख़ात्मा कर दिया और तलबा भी मुंतशिर हो गए। तब से बलदेव के मैंने सिर्फ 2-3 बार रात में देखा। अब भी वही मुनहनी हूँ और अब भी देव कामत। राम राम हुई, एक दूसरे की खैर आफियत पूछी और अपनी अपनी राह चले। मैंने उनसे हाथ मिलाते हुए कहा, आओ भाई बलदेव, मज़े में तो हो, कैसे याद किया, क्या करते हो आजकल? बलदेव ने दर्दनाक अंदाज से कहा, जिंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं और क्या। तुमसे मिलने का बहुत बहुत दिनों से इश्तियाक था। याद करो वो मकतब वाली बात जब तुम मुझे पढ़ाया करते थे। तुम्हारी बदौलत 4 हर्फ पढ़ लिया और अपनी ज़मींदारी का काम संभाल लेता हूँ, नहीं मूर्ख बना रहता। तुम मेरे गुरु हो भाई, सच कहता हूँ, मुझ जैसे गधे को पढ़ाना तुम्हारा ही काम था। ना जाने क्या बात थी कि मौलवी साहब से सबक पढ़कर अपनी जगह पर आया नहीं कि बिल्कुल साफ, कुछ सोचता ही नहीं था। तुम तो तब भी बहुत ज़हीन थे। ये कहकर उन्होंने मुझे पुरइज़्ज़त नज़रों से देखा। मैंने बचस्प तर कहा, मैं तो जब तुम्हें देखता हूँ तो यही जी में आता है कि दौड़ कर तुम्हारे गले से लिपट जाऊँ। 45 साल की मुद्दत गोया बिल्कुल गायब हो जाती है। वो मकतब आंखों के सामने फिरने लगता है और बचपन सारी दिलफरेबियों के साथ ताज़ा हो जाता है। बलदेव ने भी रक़त आमेज़ लहजे में जवाब दिया, मैंने तो भाई तुम्हें हमेशा अपना मुरब्बी और रहनुमा समझा।
जब तुम्हें देखता हूँ तो छाती गज भर की हो जाती है कि वो मेरा बचपन का दोस्त जाता है जो वक्त पड़ने पर भी दगा ना देगा। तुम कुछ खाते पीते क्यों नहीं, सूखते क्यों जाते हो? घी ना मिलता हो तो एक दो कनस्तर भिजवा दूं। अब तुम बूढ़े हुए, खूब डट कर खाया करो। अब तो बदन में जो कुछ ताकत है वो खाने पीने की बदौलत है। मैं तो अब भी शेर भर दूध और पाव भर घी उड़ा उड़ा जाता हूँ। इधर थोड़ा मक्खन भी खाने लगा हूँ। उम्र भर बाल बच्चों के लिए मर मिटी। कोई पूछता है तुम्हारी क्या हालत है? अगर आज कंधा डाल दूँ तो कोई एक लोटा पानी को ना पूछे। इसलिए खूब खाता हूँ और सबसे ज्यादा काम करता हूँ। वही जो बड़ा लड़का है उस पर पुलिस ने एक झूठा मुकदमा चला दिया है। अच्छा खासा पहलवान है, किसी से दबता नहीं। दारोगा जी ने दारोगा जी से एक बार कुछ कहा सुनिए हो गई, तब से उसकी घात में लगे हुए थे। इधर गांव में एक डाका पड़ गया। दारोगा जी ने तहकीकात में उसे भी फांस लिया। एक हफ्ते से हिरासत में है। मुकदमा मोहम्मद खलील साहब डिप्टी कलेक्टर के इजलास में है। अब मोहम्मद खलील और दारोगा की उनकी गहरी दोस्ती है। जरूर सजा हो जाएगी। अब तुम ही बचाओ तो इसकी जान बच सकती है। हमें और कोई उम्मीद नहीं। सजा तो होगी ही, इज्जत खाक में मिल जाएगी। तुम जाकर हाकिम जिला से इतना कह दो कि मुकदमा झूठा है। आप खुद तहकीकात करें। बस देखो बचपन के साथी हो, इनकार मत करना। जानता हूँ कि तुम उन मामलात में नहीं पढ़ते और ना पढ़ना चाहिए। अफसर जिला से तुम्हारी दूसरी तरह की मुलाकात है, तुम क्यों उन कुजियों में पढ़ोगे? लेकिन ये घर का मामला है, इतना समझ समझ लो बिल्कुल झूठा है। नहीं, मैं तुम्हारे पास नहीं आता। लड़के की माँ रो रो कर जान दे डालती है। बीवी ने दाना पानी छोड़ रखा है। 7 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला। मैं दूध पी लेता हूँ। दोनों सास बहू बेआबुदाना पड़ी हुई है। अगर सजा हुई तो दोनों मर जाएंगी। मैंने यही कहकर सबको ढारा दी है कि जब तक हमारा बचपन का दोस्त जिंदा जिंदा है, कोई हमारा बाल बेका नहीं कर सकता। ये बड़ी मुश्किल में पड़ा था। मेरी जानिब से जितनी एतराज़ात हो सकते थे उनका जवाब बलदेव सिंह ने पहले ही दे दिया था। मगर उनका इरादा करता हूँ तो सर हो जाएगा, गला ना छोड़ेगा। कोई जवाब ना सूझा। आखिर मुझे मजबूर होकर कहना पड़ा मैं मैं जाकर साहब से इसका जिक्र करूँगा, मगर मुझे उम्मीद है कि उसका कुछ नतीजा हो। हुक्काम मातहतों के मामले में बहुत कम दखल दिया करते हैं। तुम जाकर कह दो तकदीर में जो है वो तो होगा ही। अच्छी बात है। तो कल जाओगे? कल ही जाऊंगा। बलदेव सिंह को रुखसत करके मैं अपना मजमून खत्म किया। आराम से खाना खाकर लेटा। मैंने बलदेव सिंह को झांसा दिया था। मैं पहले से बता चुका था कि आम तौर से पुलिस का एतबार करते हैं। ये कहने की काफ़ी गुंजाइश थी कि साहब इस मामले में दखल देना मुनासिब ना समझा। साहब के पास जाने का मैंने ख्वाब में भी ख्याल ना किया था। मैं इस वाक़े को बिल्कुल भूल गया था कि 8वें दिन बलदेव सिंह अपने पहलवान बेटे के साथ मेरे कमरे में दाखिल हुए। बेटे ने मेरे कदमों पर सर रख दिया और एक किनारे खड़ा हो गया। बलदेव सिंह बोले, बिल्कुल बरी हो गया। भाई साहब ने दारोगा जी को बुलाकर खूब डांटा कि तुम भले आदमी को सताते और बदनाम करते हो। अगर फिर ऐसी शरारत की तो बर्खास्त कर दिए जाओगे। दारोगा बहुत परेशान हुए। जब साहब ने उसे बरी कर दिया तो मैंने दारोगा साहब को झुक कर सलाम किया। बेचारे पर बेचारे पर घड़ों पानी पड़ गया। ये तुम्हारी सिफारिश की बरकत है ब्रादर। अगर तुमने मदद ना की होती तो हम तबाह हो गए थे। ये समझ लो 4 आदमियों की जान बच गई। मैं तुम्हारे पास डरते डरते आया था। लोगों ने कहा था कि उनके पास नाहक जाते हो। वो बड़ा बेमुरवत आदमी है। उसकी जात से किसी को फायदा नहीं पहुंच सकता। आदमी वो कहलाता है जिससे जरूरतमंदों का काम निकले। वो क्या आदमी है जो किसी की कुछ सुने ही नहीं। यही कहा मुझसे कुछ मतलब नहीं, लेकिन भाई मैंने किसी की ना सुनी। मेरे दिल में मेरा आराम बैठा कह रहा है कि तुम चाहे कितनी ही रूखे बेमुरव्वत हो, लेकिन मुझ पर जरूर रहम करोगे। ये कहकर बलदेव सिंह ने अपने लड़के को इशारा किया और बाहर गया और एक बड़ा सा गठरा उठा लाया जिसमें अनवा व अक़साम की देहाती सौगातें बनी हुई थी। हालांकि मैं बराबर कह जाता था कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मगर उस वक्त भी मुझे ये तस्लीम करने का हौसला न हुआ कि मैं साहब के पास गया ही नहीं। जो कुछ खुद ब खुद हुआ, मुफ्त का एहसान छोड़ना तबीयत ने गवारा न किया। आप सुन रहे थे प्रेमचंद के अफसानी मजमुआ वारदात में शामिल 12वां अफसाना मुफ्त करम दाश्तान। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।